like to thank Dr. Sonali Naik and the entire team of Adarsh Human for arranging such a wonderful program. And I am honored to be here. Health. Health is our priority. हमारा स्वास्थ्य, हमारे परिवार का स्वास्थ्य हम सबके लिए प्राथमिकता होती है और होनी भी चाहिए. And the first step towards health is to understand what is food, nutrition and hygiene. And today we are going to discuss about nutrition. So, what is nutrition? Nutrition is a biochemical and physiological process for which organism uses food to support its life. And this food has chemical components which are very essential for our day-to-day body functions and life and other activities. These are the nutrients, and we require lots of energy for our day-to-day life activity, and this fulfillment of this energy get fulfilled by the nutrients. So according to naturopathy, there are 7 nutrients. Usually we know about 6 nutrients, but here 7 nutrients are there. Protein, carbohydrate, fat, vitamin, minerals, water, and the last one is fiber, the most important one. Let's see about protein. We all of us know that protein is a large complex molecule and it is very good for our health, muscular activity, and it gives structural framework to our body, and it is very useful in growth and development of cells. तो प्रोटीन है तो उसका हमें सोर्सेस भी पता करना होगा कि प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स? तो प्रोटीन हमें मिलता है डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चिकपीस, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, ऑल दीज आर द सोर्सेस. हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का, for an adult woman it is 46 gram and for adult man it is up to 56 grams. तो हम अपना प्रोटीन का जो है डेली रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरे करें? तो अगर एक ग्लास होल मिल्क आप लेते हो, कंज्यूम करते हो, होल मिल्क अगर देसी गाय का है तो बेटर है, यू कैन यूज बफेलो मिल्क. अगर एक ग्लास मिल्क आप कंज्यूम करते हो तो उससे आपका 30% प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है, फुलफिल हो जाता है. बट अगर बच्चे जो 4 to 6 एज में है, 4 to 7 एज में है, उनको अगर आप एक ग्लास मिल्क देते हो तो उनका 70% जो है डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन का फुलफिल हो जाता है अगर वो बल्सम मिल्क है तो. और उसके बाद जो है हमारा डेली मील जो होता है उसमें हम 1 बाउल फुल ऑफ लेंटिल, दाल एंड राजमा, चिकपीस, स्प्राउट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्राउट्स आर देयर. हम ये दाल, चावल, होलसम ग्रेन्स है वो यूज़ कर सकते हैं, बट थिंग इज दैट कि बहुत रिफाइंड नहीं होना चाहिए. तो ये सब जो है वो हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है. हमें और कहीं दूसरी चीज़ों में प्रोटीन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. ये हमारा अगर हम डेली इसका यूज़ करें तो रिक्वायरमेंट पूरा होता है. फिर देन विटामिन्स. विटामिन्स आर वाइटल फॉर अवर हेल्थ. सबको पता है, हमें जो है इम्यूनिटी बूस्टर है विटामिन्स. दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेयर, स्किन एंड आवर हेल्थ, एंड दे गिव्स अस immunity to fight against infections and allergies like cough and cold. They are very necessary. And sources, vitamins are different types. Vitamin A, B, vitamin A, B, lots of vitamins are there. Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, all are vitamin C, A, D, E, B. And these vitamins are very good. Vitamin A is good for our vision.
Vitamin C is good for our skin and our cartilage bone structure. Vitamin D is very good for our bones and to absorb calcium at the proper rate. And vitamin B7 biotin is very good for hair growth and hair structure. Vitamin B12 vitamin B12 is also very good for formation of energy. All vitamin B are basically gives the function of formation of energy. And sources of the proteins are dates, green vegetables, green legumes, lentils, fresh fruits are the sources. Beans, soybean, mushrooms you can use. These all are the we all know that these are all the sources of vitamins. तो vitamins हम लेते तो है, but it needed in very small quantity. जो है हमें विटामिन की जो डे टू डे लाइफ में रिक्वायर्ड होती है, डेली रिक्वायरमेंट होती है, बहुत कम मिलीग्राम माइक्रोग्राम में होती है. तो एक बाउल फ्रेश फ्रूट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, सीजनल फ्रेश फ्रूट्स, और अगर एक बाउल हम वेजिटेबल्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सलाड और इन द फॉर्म ऑफ सूप और इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल, तो आप आपकी जो है विटामिन की रिक्वायरमेंट आपकी डेली है जो फुलफिल हो जाती है. और उसके बाद हम देखते हैं मिनरल्स की इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बैलेंस डाइट, जो हमारे हेल्थ ऑफ hair, cartilage and bones, it is very important. तो minerals भी सभी है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एवरी आयरन, these are all the minerals and these are very important. But जो है इसका सोर्स हमें देखना है कि मिनरल्स हमें वेजिटेबल्स कौन सी वेजिटेबल्स से हमें मिलते हैं. बेस्ट सोर्सेज वाटर एंड देन ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, legumes, lentils, seeds. These are nuts, cashew nut, walnut. All these are the sources. And then the carbohydrate. Carbohydrate is also a very essential nutrient, जो हमें अपनी दाल, चावल, रोटी जो है होलसम ग्रेन्स में से मिलता है. फिर आता है वाटर इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल. सबको पता है कि 60% हमारी बॉडी जो है वो वाटर से बनी हुई होती है. तो हमें दिन में 7 से 8 ग्लास पानी लेना चाहिए, और जब आपको प्यास लगे तो भी पानी पीना है. ऐसे नहीं है कि 7-8 ग्लास पानी पीना है मतलब पी ही जाना है, कि जरूरत नहीं है तो भी. और पानी पीना है तो सिप करके पीना है, उसको अपने मुंह में उसको घुमा के सलाइवा मिक्स करके ही उसको अंदर जाना है, तभी वो इफेक्टिव होगा, इजीली एब्सॉर्ब होगा उसमें जो मिनरल्स हैं. तो इस तरह से ये जो है. नेक्स्ट स्लाइड. फैट भी इसेंशियल है. फैट का तो सोचने की बात ही नहीं, सबके पास बहुत सारे अमाउंट में अवेलेबल है, लोग कम करने में लगे हैं इसको. तो भी ये बहुत जरूरी है टू प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स, और जो है डाइजेशन के लिए भी फैट की बहुत ज़रूरत होती है. तो फैट हमें बहुत सारी चीज़ों से मिलता है. ऑयल, पीनट ऑयल, सीसमे ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑल टाइप्स ऑफ ऑयल्स. तो ये ऑयल्स जो है, अगर हम रिफाइंड ऑयल, फिल्टर्ड ऑयल अगर ना यूज करें तो बेटर है. अगर जितना पॉसिबल हो आप जो है वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एंड कच्ची घानी का तेल अगर आप यूज करते हैं तो वो बेटर रहेगा. और ये सभी ऑयल्स आपको अल्टरनेटली यूज करना है. ऐसे नहीं कि एक ही हम पीनट ऑयल, सिंग तेल हम खा रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करें, ऐसा जरूरत. मिनरल्स के लिए अलग अलग फैट्स ऑब्टेन करने के लिए आपको अलग अलग ऑयल यूज करना पड़ेगा. बट कंडीशन इज दैट कि उनको आपको मिक्स नहीं करना है, आपको एट ए टाइम एक ही कोई भी ऑयल यूज करना है. Then fibers, very important nutrient, fiber. इसको तरफ हम ध्यान ही नहीं देते. हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है 35 to 30 ग्राम पर डे फाइबर की, और हम इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान देते नहीं है. फाइबर्स जो है हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है.
It avoids the risk of cardiovascular diseases, many cancers and diabetes and BP जो है वो इसकी रिस्क कम करता है, और हमें इसे कंज्यूम करना ही है। तो फाइबर्स जो है आपको कहाँ से मिलेगा? तो जो है ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स, इसमें से आपको फाइबर्स बहुत अच्छी तरह से मिल सकता है। अगर आप रॉ कंडीशन में यूज करते हैं सभी चीजें, तो फाइबर आपको ज्यादा अमाउंट में मिलता है, तो फाइबर लेना जरूरी है। अब इतना सारा हमने देख लिया कि इतनी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सब नाउअडेज एवरीथिंग इज वाइडली अवेलेबल, सबको पता है हर जगह कितनी सब्जियां, फल, सबके पास पैसा है, सब खरीदते भी हैं, कंज्यूम भी करते हैं। फिर भी हर कोई किसी ना किसी डिफिशियंसी का शिकार है। तो ये डिफिशियंसी होती क्यों है? एंड हियर कम्स द नेचुरोपैथी कि जो है न्यूट्रिशन इज नॉट ओनली टू कंज्यूम द फूड। फूड कंज्यूम करना, खाना ही न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिएंट्स आप खाओगे मतलब आपके बॉडी में आ गई है, नहीं है। न्यूट्रिशन इज द होल प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन तभी है जब आप कंज्यूम किए, वो बॉडी में आपके एब्सॉर्ब हुए, फिर उसको वो आपके ब्लड में मिले, और उसके बाद जो उससे वेस्ट मटेरियल जो निकलता है वो एक्सक्रीट आउट प्रॉपरली हो, तो ही वो न्यूट्रिशन है। तो ये चीज हम भूल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले व्हाट आर द कॉजेस ऑफ न्यूट्रिशन। पहले हम देखते हैं कि विटामिन्स की बात जब हमने की कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो जब डिफिशियंसी होती है तो क्या करना चाहिए? डिफिशियंसी होती है तो यूज योर फूड एज योर मेडिसिन। आपका फूड ही आपका मेडिसिन है, आपको और कहीं से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसी में से मिलेगा। आप सब्जी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, फिर भी आपको अगर डिफिशियंसी हो रही है, मतलब प्रॉपर अमाउंट में आप उसको नहीं ले रहे हो, तो हाँ, न्यूट्रिशन हमारे आजू बाजू चारों तरफ अवेलेबल है, बट लेना क्या है? डिफिशियंसी होती है तो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन होता नहीं है बॉडी में, एब्जॉर्प्शन हुआ नहीं, डिफिशियंसी हो गई तो आप सप्लीमेंट्स लेंगे, ओरल सप्लीमेंट्स लेंगे टैबलेट के फॉर्म में। अब टैबलेट के फॉर्म में अगर सप्लीमेंट अंदर जा रहा है तो भी उसका भी तो एब्जॉर्प्शन जरूरी है। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो भी तो एक्सक्रीट आउट ही हो जाएगा। तो फिर क्या होता है? डिफिशियंसी तो ऐसे ही रही सप्लीमेंट्स जाने के बाद भी। फिर उसके बाद होता है डायरेक्ट ब्लड में न्यूट्रिशन सप्लाई करो, इंजेक्शंस आ जाते हैं, इंजेक्शन पे आ जाते हैं। तो इंजेक्शंस तो लेना जरूरी है क्योंकि डिफिशियंसी है अभी, तो उसको तो पूरा करना है। बट कब तक लेते रहेंगे आप इंजेक्शंस? और पूरी जिंदगी तो आप टैबलेट्स और इंजेक्शंस पे नहीं रह सकते हैं ना। तो उसके लिए हमें उसके सप्लीमेंट्स नेचुरल फॉर्म में ढूंढने होंगे, और अवेलेबल है, नेचर ने हमें इतना सारा अवेलेबल करके रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे मोरिंगा लीव्स है, विटामिन सी, फुल ऑफ विटामिन सी एंड पोटेशियम, 7 times more than oranges and all citrus fruit। अगर हम एक बाउल मोरिंगा लीव्स कंज्यूम करते हैं इन एनी फॉर्म, इन पाउडर फॉर्म, इन रॉ फॉर्म और जूस फॉर्म, तो क्या होगा? मेडिसिन की तरह, जैसे हम मेडिसिन अगर आपको कोई प्रिस्क्राइब कीजिए, आप भूलते हैं लेना, टाइम टू टाइम उसको बराबर लेते हैं। बस आपको न्यूट्रिशन की, आपको फूड के मेडिसिन की तरह यूज करना है। आप लीजिए, अगर विटामिन डेफिशिएंसी है आपको तो लीजिए, एक बाउल भर के आप मोरिंगा लीव्स लीजिए, विटामिन सी आपको मिल जाएगा। विटामिन ए के लिए जो है चौले की सब्जी हम खाते हैं, पकाते हैं, उसमें आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो होती है विटामिन ए की 97%, एक बाउल अगर चौलाई आप खाते हैं तो 97% आपकी डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। बट उसको उस तरीके से आपको कंज्यूम करना है। गुआवा लीव्स है, कैल्शियम, फुल ऑफ कैल्शियम, आयरन जो है, बीटरूट लीव्स, बीटरूट तो सब लेते हैं, बीटरूट की लीव्स कचरे के डब्बे में, उसमें 80% जो है आपकी डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। अगर वन बॉल फुल ऑफ, अगर आप बीटरूट्स लेंगे तो बीटरूट लीव्स लेंगे तो करी लीव्स फ्री में मिलता है सब्जी वाले के पास, बट हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसमें वो फुल ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सब चीजें उसमें है,
बट अगर हम उसको एक अगर आपको ये डेफिशिएंसी है तो अगर हम उसको एक कपल भर के रोज सुबह में लेंगे तो आपकी डेफिशिएंसी तो ऐसे ही चली जाएगी। आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, यही सप्लीमेंट्स है। यूज योर फूड एज योर मेडिसिन। मैंगो लीव्स है और मेजर है। नाउ वी सी द कॉजेस ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी। अब डिफिशिएंसी होती है, हम सब कंज्यूम करते हैं, पर क्यों होती है, क्या रीजंस हैं? लेट्स सी। इनएडिक्वेट डाइट, जो बोला ही कि आप प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन जो विटामिन है वो आपके डाइट में प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता है, इस वजह से भी न्यूट्रिशन एक है होता है। देन लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन फूड। अब एब्जॉर्प्शन क्यों कम होता है? जब हम खाते तो अच्छा खासा है, पर फिर एब्जॉर्ब क्यों नहीं होता है? तो थिंग इज दैट कि उसको देखना पड़ता है कि भाई एब्जॉर्प्शन में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अगर कोई जो है पेशेंट वो कंटिन्यूस एंटीबायोटिक्स कंज्यूम कर रहा है तो वो भी एब्जॉर्प्शन पावर लो हो जाती है। और दूसरा कि जो कोई भी खाते हैं उसको या फिर पचाने में दिन भर पूरा बैठ के काम करते हैं, उनका डाइजेशन नहीं होता है ठीक से और सारा वेस्ट आउट हो जाता है। तो ये सब रीजंस है लेस एब्जॉर्प्शन के लिए। दूसरा है ओवर कुकिंग ऑफ फूड। अब ओवर कुकिंग करते हैं फूड को, 2 सीटी लगाई सब्जी रेडी, टाइम बचाते हैं। सब्जियां अगर हम प्रेशर कुकर में कुक करते हैं तो उसका जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाता है और ज़्यादा पकाने से। और दूसरा है कि छिलके उतार देते हैं। करेले की सब्जी है, छिलका उतार दिया। पंपकिन की सब्जी है, छिलका उतार दिया। पोटैटो खाना है, छिलका उतार के खाएंगे। पोटैटो स्किन इज रिच ऑफ आयरन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो यही चीजें हैं जिस वजह से न्यूट्रिशन पूरी तरह से हमें नहीं मिल पाता है। एंड लैक ऑफ डाइटरी फाइबर्स इन फूड। डाइटरी फाइबर जो है उससे हम एक तो छिलके निकाल के आधा फाइबर तो हमने पहले ही फेंक दिया, और दूसरा है कि उसको बॉईल करके वो जो है और सब्जी में थोड़ा सा सब्जी खाएंगे, उसके साथ बहुत सारा चावल और रोटी खाएंगे, तो फाइबर्स तो आपके बहुत कम गए। रोटी है वो भी रिफाइंड है, चावल है वो भी रिफाइंड है, जोगर वाली आटे की रोटी नहीं है, राइस जो है वो हाईली पॉलिश्ड है, तो फाइबर कहाँ से जाएगा? फाइबर नहीं जाएगा तो डाइजेशन भी नहीं होगा, तो एब्जॉर्प्शन हो गया डाउन। और न्यूट्रिशन क्या मिला? 0। तो ये न्यूट्रिशन जो है डाइटरी फाइबर की जो बात हमने की है, तो वो डाइटरी फाइबर हम क्यों लेना चाहिए? हमारा जो है विटामिन और मिनरल्स का जो एब्सॉर्प्शन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है उसकी इंटरनल वॉल जो होती है वो ऐसे होल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको विलाया बोलते हैं, जिससे वो एब्सॉर्ब होता है न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो अब होता क्या है कि हम ऐसा वैसा फूड खाना खा के, जो भी अभी मार्केट में मिलता है, मैं खिलाऊंगी नहीं, सबको पता ही है, तो ये जो है ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है ये विलायस में जाके फंस जाता है, और ये साइकिल आपकी सालों साल चल रही है। आप कितने साल से ऐसा ही फूड खा रहे हो, तो क्या होता है कि वो वहाँ में जाकर वहाँ फंस के स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो सारे होल्स जो है ब्लॉक हो जाते हैं। जब होल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो एब्जॉर्ब कहाँ से होगा? एक ही तो सिस्टम है जो आपके विटामिन को एब्जॉर्ब करे, आपके मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे, उसको आप ब्लॉक कर दोगे, पानी आएगा कहाँ से? नल ब्लॉक हो गया। तो ऐसा है कि अंदर जाएगा ही नहीं विटामिन, और फिर सब एक्सरेड आउट, तो कितना भी कंज्यूम करे क्या है? तो इसके लिए कोई ब्रश बना हुआ नहीं है जो आपकी इंटेस्टाइन को अंदर से क्लीन करे। अभी तक तो मेरे नॉलेज में तो नहीं बना हुआ है कि ब्रश डाला और इंटेस्टाइन को क्लीन कर लिया, तो ऐसा नहीं है। बट नेचुरोपैथी गिव्स यू द सॉल्यूशन। नेचुरोपैथी में इसका सॉल्यूशन है, हम आपको जो है डिटॉक्स करा के इंटेस्टाइन क्लीन कराते हैं। जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है उसके लिए वो आपको देते हैं, षटकर्म कराते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है इंटेस्टाइन क्लीन हो जाता है, एंड इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ बीपी, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस एंड ऑल कैंसरस डिसीजेस जो भी है उसका रिस्क कम हो जाता है। जो इंटेस्टाइन पूरा आपका ब्लॉक हो जाता है, तो ये हर चीज होने की पॉसिबिलिटी होती है।
है जो आजकल डिसीजेस आ रहे हैं, दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। इसके लिए जो है हमने आपको बताते हैं एब्सॉर्प्शन के लिए, अगर इन केस किसी का एब्सॉर्प्शन किसी वजह से कम होता है तो भी उसको बढ़ाना भी पड़ेगा, एब्सॉर्प्शन को बढ़ाना पड़ेगा। इंटेस्टाइन क्लीन हो गया, डायट ये जो है डिटॉक्स हो गया, अब एब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी आपको बढ़ानी है तो हम कुछ पेयरिंग ऑफ फूड्स सजेस्ट करते हैं जो इट बूस्ट द एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ दैट फूड। अगर सपोज आप आयरन खाना चाहते हैं, स्पिनच लिया आपने, देन स्क्वीज फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन ओवर इट, इट विल ब्रेक डाउन द आयरन एंड मेक्स improve its absorption capacity। आयरन की जो कैपेसिटी है एब्सॉर्प्शन की वो उसको इंक्रीज करेगा। Then turmeric is very good for our health. It has anti-inflammatory, antioxidant properties. बट अगर उसको कंज्यूम करना है, बहुत सारे डिसीजेस में हम उसको सजेस्ट करते हैं, उसको एब्सॉर्ब करना है ठीक तरीके से, उसका एक्टिव पावर बढ़ाना है तो हमें उसके साथ ब्लैक पेपर लेना पड़ेगा। और टोमेटोज हैज लाइकोपीन, इनक्रेडिबल एंटीऑक्सीडेंट जो आपको सही हेल्थ दे सकता है, बट यू हैव टू टेक इट विद सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑलिव ऑयल टू इंक्रीज इट्स एब्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी। अगर आप कुक कर रहे हो तो कुकिंग में भी आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल यूज करेंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, एब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी। लाइकोपीन तो उसमें है ही ऑलरेडी। जैसे कैल्शियम है, मैडम भी सजेस्ट करते हैं कैल्शियम टैबलेट्स भी अगर इवन आप ले रहे हो, कैल्शियम सप्लीमेंट्स टैबलेट के फॉर्म में भी ले रहे हो, यू नीड विटामिन डी टू एब्सॉर्ब द कैल्शियम। जब तक आप उसके साथ विटामिन डी नहीं लोगे तो आपकी कैल्शियम एब्सॉर्ब हो ही नहीं पाएगी। कैल्शियम डी कहाँ से मिलेगा? ऑरेंज से, सोयाबीन है, फ्रेश सीजनल फ्रूट्स है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज मॉर्निंग सनलाइट। मॉर्निंग सनलाइट आप जब लेते हैं तो विटामिन डी आपके शरीर में तैयार होता है जो आपके एब्सॉर्प्शन है कैल्शियम उसको बढ़ाते हैं। तो अभी हमने आपको जो सब बताया कि ये खाना है, वो खाना है, ये वेजिटेबल खाना है, ग्रीन वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट, तो ये सब तो लेना है ही है, बट क्यों लेना है वो भी हमें समझना है। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हाँ मैं तो बहुत पालक कंज्यूम कर लिया आज। हाँ भी क्या खाया आपने? मैं तो पालक के पकोड़े खाए। क्या कोई फायदा नहीं है, पालक के पकोड़े आप भले खाएंगे बट वो उस फॉर्म में नहीं होता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाती है जब वो फ्राई करेंगे। उसको किस फॉर्म में हमें खाना है? नेचर हमारा जो है वो 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश। और ये जो नेचर के 5 एलिमेंट्स है ये ही हमारे बॉडी में है, इसी से हम बने हुए हैं, इस 5 एलिमेंट्स। तो पृथ्वी की हम बात करें तो सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, सारे मिनरल्स अवेलेबल है जो माटी नहीं खाना है, जो प्लांट्स उसको लेके तैयार होते हैं, फल फूल जो भी वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स लेके बाहर आते हैं और हम उसे एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। तो पृथ्वी तत्व हमें इन सब चीजों से मिलता है, इसीलिए हमें ये सब खाना जरूरी है, प्लांट बेस्ड फूड, ताकि हमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे इसमें पृथ्वी तत्व की प्राप्ति इससे होती है। तो जैसे हम पृथ्वी तत्व की प्राप्ति तो हमने कर ली, मिट्टी के बर्तन का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन का यूज करते हैं पानी भरने के लिए, तो वो फूड एंड वाटर बिकम्स मिनरल रिच, तो उससे हमें मिनरल्स मिल जाते हैं, पृथ्वी तत्व मिलते हैं। फिर उसके बाद जल, सबको पता है जल तो जीवन है, फिर उससे हमें नंबर ऑफ मिनरल्स मिलते हैं, हमें कंज्यूम करना चाहिए। फिर आता है वायु जो है हमारे शरीर में क्या काम करता है? रेस्पिरेशन जो है कि वायु का काम है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करना। ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमें वायु की बहुत जरूरत होती है। दूसरा है कि एक्सक्रीशन,
रेस्पिरेशन प्रॉपर होने के लिए वायु की जरूरत होती है। एंड थर्ड वन इज द रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन जो हमें वायु से मिलता है उससे जो ब्लड सेल्स में एनर्जी फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। तो वो फ्रेश एयर लेना, प्राणायाम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम वायु तत्व की प्राप्ति कर सकें। एंड देन अग्नि इज सूर्य। सूर्य से हमें अग्नि तत्व की प्राप्ति होती है व्हेन आवर स्किन गेट एक्सपोज्ड टू द सनलाइट, मॉर्निंग सनलाइट, then protein present beneath the skin get converted into vitamin D3 which is an active form of D and which is very useful to absorb calcium। तो हमें विटामिन डी उसकी प्राप्ति होती है जो हमें बहुत ज़रूरी होती है। और विटामिन ये जो सनलाइट है उसको लेकर ही तो सारे फल फूल पौधे क्लोरोफिल तैयार करते हैं, उसको लेकर ही तो सारे पक के बाहर आते हैं और हम उन्हें कंज्यूम करते हैं, तो हमें उससे भी अपनी तत्व की प्राप्ति होती है। एंड देन आकाश जो है, हमें उपवास से हमें आकाश तत्व की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर को उपवास, आकाश, स्पेस, जो खालीपन है उसको हम आकाश बोलते हैं। तो कभी हमें शरीर को हमारे खालीपन देने की जरूरत होती है, उसको रेस्ट देने की जरूरत होती है। इंटेस्टाइन हम दिन भर पूरा टाइम मंचिंग करते रहते हैं, ये खाओ वो खाओ वो खाओ न्यूट्रिशन के नाम पे, तो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम थक जाती है। उसमें जो अंदर जो है मैंने वो बताया था स्ट्रक्चर, तो उसमें जो फंसा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या, वो कब डाइजेस्ट होगा जब आप पूरा ही उसको नया काम दे रहे हो हर रोज। तो उसको देने के लिए जरूरी है रेस्ट देना जरूरी है, और वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको बाहर निकालना है तो आपको रेस्ट, इंटेस्टाइन को टाइम देना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा। इसलिए उपवास करना जरूरी है। लंघनम परम औषधम हम बोलते हैं। तो इसीलिए उपवास मतलब ये नहीं कि चिप्स खा लिए, स्वीट पोटैटोस खा लिए या तला हुआ कुछ और खा लिया, पकौड़े खा लिए, ये नहीं है। लंघन करना है, औषधम परम लंघनम। तो इस तरह से ये जो है फाइव एलिमेंट्स जो है हमारी बॉडी को बैलेंस्ड रखते हैं, और हमें इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस रखना होगा। हम हमेशा इसको डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इसीलिए डिफिशियंसीज क्रिएट होती है। तो इसको अगर हम बैलेंस रखेंगे सही तरीके से, डिफिशियंसीज को हटाना है, तो हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, हमें नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाना होगा, हमें जो है नेचुरल फूड को अपनाना होगा। जब भी हम ये नेचुरल फूड और नेचुरल लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ खाना ही सब कुछ नहीं है, उसको किस तरह से आप खाते हो, खाते वक्त उसको पूरी तरह से च्यू करना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि च्यू द वाटर एंड ड्रिंक फूड। फूड को पीना है, मतलब उसको इतना आपको घुमाना है, सलाइवा मिक्स है, सलाइवा में जो टाइलिंग होता है वो उसको जो है डाइजेशन के लिए, प्रॉपर एब्सॉर्प्शन के लिए रेडी करता है, उसको अल्कलाइन बनाता है। अगर आप हाई पीएच वाला फूड कुछ खाते हो, लो पीएच वाला कुछ फूड खाते हो, तो उसको हाई पीएच में कन्वर्ट करता है, ये खाने को अल्कलाइन बनाता है, एसिडिटी को मिटाता है। जिसको भी एसिडिटी है, ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना है कि एसिडिटी इसी से बढ़ती है कि आप पूरा खाना अंदर ठूस देते हो, क्योंकि सब चीजों के लिए टाइम होता है, खाने के लिए टाइम नहीं होता है हमारे पास। तो ये बहुत जरूरी है। और जैसे कहते हैं ना कि उदरभरण नोहे जाने जे यज्ञ कर्म, हमारे मराठी में भी ये है। तो उदरभरण नहीं मतलब कि हमारा सिर्फ पेट हमें नहीं भरना है, पेट को भरना ही नहीं है एक्चुअली, उसको हमें स्पेस देना है, आकाश तत्व देना है, उसको थोड़ा खाली रखना है। जैसे हम 1 रोटी 2 रोटी का हमारा डाइट है, तो हम थोड़ी सी आधी रोटी कम खाए, थोड़ी स्पेस रखें एयर के लिए, जो है डाइजेशन के लिए। तो यज्ञ में जिस तरह सामग्री पड़ती है, हम कुछ भी लाके यज्ञ में, अग्नि चला हुआ है तो कुछ भी लाके डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह ये यज्ञ की तरह है हमारा जो है डाइजेशन और कंजम्पशन। तो थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम आपको खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, मतलब जैसे कि, और प्योर फॉर्म में खाना है, जो नेचुरल फॉर्म में बाहर अवेलेबल है उसी फॉर्म में अगर आप कंज्यूम करते हो। 80% रॉ फूड एंड 20% कुक फूड। रॉ मीन्स
मीन्स आप उसको रॉ समझते हैं, बट इट इज नॉट रॉ। वो सनलाइट में कुक होके ही अपने पास आता है। हम भूल जाते हैं कि अपने पास जो कुछ रॉ फॉर्म में अवेलेबल है वो अनकुक्ड है, हम यही समझते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो कुक्ड फूड ही है। तो हम इसे हम रॉ कहते हैं। तो अगर आप 80% रॉ है नहीं आप कर पाते हैं, सबके पास टाइम नहीं है, नहीं आप 80% कर सकते हैं, तो आप 70-30 का रेशो रखिए, 60-40 का रेशो रखिए। बट रेशो उल्टा हो जाता है हमारा। हम हमेशा कुक फूड जो है 80% खाते हैं। अगर फलों के फॉर्म में जो सब आप सब कह ही रहे हैं तो भाई चलो आज एक फल खा लेते हैं, तो जो है हम 20% खाते हैं। तो ऐसा अगर 80-20 30-70 का अगर हम रेशो रखते हैं तो पीएच जो आपकी एसिडिटी का सबसे मेन प्रॉब्लम है लोगों को, जो दिन रात आपको टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं एसिडिटी के लिए, वो नहीं होगा अगर आप इस तरह से फूड को कंज्यूम करेंगे। तो ये है नेचुरल पर्सपेक्टिव ऑन न्यूट्रिशन। अगर इस तरह से आप फूड को कंज्यूम करेंगे तो कोई डिफिशियंसी आपको नहीं होगी। और फिर बोलेंगे, आपका सवाल जरूर आएगा कि क्या ये सिर्फ घास फूस खाने से हमें एनर्जी मिलेगी? एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी देखते हैं कि आपने देखा है, हाथी को देखा है आपने, घोड़े को देखा है, क्या खाते हैं? नेचुरल फूड ही तो खाते हैं। आप डाउट करोगे उनकी एनर्जी पे, उनकी ताकत पे डाउट करोगे आप? कोई डाउट नहीं कर सकता। क्या खाता है घोड़ा? चने खाता है, घास खाता है। हाथी क्या खाता है? कितनी ताकत है ना? तो हमें ताकत क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी अगर हम नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाते हैं और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके अपना इंटेस्टाइन क्लीन रखते हैं हमेशा। तो हमें हेल्थ हमारी मुट्ठी में है, हमें कहीं और बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमें नेचर में ही मिलेगी। थैंक यू। हाँ, क्वेश्चंस हैं किसी के? कुछ पूछना? हाँ अच्छा, आप ये बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही क्वेश्चन इन्होंने किया है, बहुत सही, क्योंकि ये सबके मन में आया होगा पर किसी ने शायद बोला ही नहीं है कि भाई पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, ऑर्गेनिक के नाम पे हमें मिलता तो है बट ऑर्गेनिक है कि नहीं हम जानते ही नहीं है ना? तो फिर क्या सबके छिलके उतार के फेंक देंगे? नहीं। अगर इसमें पेस्टिसाइड्स है, कुछ ऊपर से उसमें लगे हुए हैं, फर्टिलाइजर्स जो दिए गए हैं, केमिकल्स, तो उसको हमें क्या करना है कि जो फ्रूट्स है, जो वेजिटेबल्स है, आपको लुकवार्म या थोड़ा गर्म पानी में उसको धोना है, नमक डाल के उसको रखना है। अगर नमक डाले हुए पानी में आप उसको रखते हो तो मोस्ट ऑफ द जो उसका इफेक्ट होता है ना वो कम होता है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहती है। और इससे भी बढ़िया बात कि जो फ्रूट्स हम खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, बट जो अगर हम मैंगो की बात करें तो भाई किस पाउडर में पका के आता है हमारे पास, है ना? मैंगो तो पाउडर में पका के आ गया, फिर अब उसको खाए भी नहीं, उसका छिलका तो चलो हम उतारते हैं, फिर भी वो इतना पावरफुल होता है कि मैंगो के अंदर भी आप इफेक्ट कर जाता है। तो फिर क्या है, मैंगो तो खाना है, तो जो न्यूट्रिएंट्स मैंगो में है वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसके पत्तों में भी है। अगर आपको खाने के लिए मैंगो खाइए, अगर आपको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है तो जो मैंगो में प्रेजेंट है आप उसके पत्ते कंज्यूम कीजिए ना। अब रास्ते में जैसे मैंने बोला था कि मोरिंगा लीव्स है, नीम लीव्स है, कोई फर्टिलाइजर नहीं छाटता है, रास्ते पे उगे हुए होते हैं। आम के पेड़ है, कितने पेड़ है जो हमारे आजू बाजू में है, हरी श्रृंगार के है, हिबिस्कस के है, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं छाटते हैं उनपे और ना ही कोई पेस्टिसाइड्स पे छाटते हैं। तो ये जो चीजें हैं वही मैंने आपको बताया कि अगर आपको करना है तो आपके फूड में ही आपको मेडिसिन ढूंढना पड़ेगा, आपको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। और अभी कहाँ गए मैडम जो हाँ इन्होंने मुझे सवाल किया कि ये फर्टिलाइजर पर इसकी ये क्या है? अगर हर कोई ये
सिर्फ बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें भी थोड़ा सा इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट मैं अपने लिए तो कि अपने घर में थोड़ा सा विदाउट फर्टिलाइजर कुछ ग्रो करूं, विदाउट फर्टिलाइजर फूड मुझे खाना है, विदाउट पेस्टिसाइड मुझे खाना है, तो मैं अपने लिए थोड़ा सा गमले में कुछ लगा लूं। शायद अगर 100% मुझे बाहर से लेना पड़ता नहीं मिलता है तो मैं 10% तो सही चीज खाऊं अपने लिए। ये सब तो आपको कर सकते हो ना। बोलने से शायद नहीं होगा कि हर कोई अगर ऐसे बोलता रहेगा कि भाई पेस्टिसाइड है, नहीं। और ऑर्गेनिक के नाम पे तो जो मिलता है फिर तो वो तो मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं पता कि वो कितना सही तरीके से आपके पास आता है। तो अपने लिए अगर अपनी हेल्थ रखनी है तो अपने को कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हेल्थ आपको मिलेगी। टैबलेट्स खा के हेल्थ नहीं मिलेगी। मतलब टैबलेट जरूरी होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी मैडम बहुत जरूरी होता है सप्लीमेंट्स लेना भी, बट पूरी जिंदगी आप उस पर नहीं रह सकते हो। इमरजेंसी में तो टैबलेट्स ही काम है मैडम, है ही है। तो हाँ, वो भी मैंने आपको लेक्चर में बताया था बीच में कि पत्ते, हाँ शायद मिस हो गया आपका, पत्ते जो है वो आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हो। ड्राइड पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं, या खुद भी बना सकते हो, ड्राइड पाउडर फॉर्म में खा सकते हो, एंड रॉ खा सकते हो। उनका टेस्ट की बात मत करना, टेस्ट सिर्फ 1.5 इंच जीप में होती है, उसके बाद कोई कुछ भी अंदर डालो टेस्ट नहीं पता चलेगी आपको अंदर क्या जा रहा है ना। तो टेस्ट, और मैंगो के पत्ते की अगर बात करें तो उसको टेस्ट नहीं होते हैं, ना ही कड़वे होते हैं। अगर एक बार आपको आदत हो जाए पत्ते खाने की तो जिनको डिफिशियंसी है वो मेडिसिन की तरह खाए, और जिनको डिफिशियंसी नहीं है और हेल्थ आपको प्रॉपर मेंटेन रखना है तो क्यों ना हम रोज ही 2 पत्ते इसके खाए, आम के खाए, जामफल के खाए, और भी जो पेड़ अवेलेबल है उसके 2-2 पत्ते अगर हम सुबह खा ले तो क्या होगा, एज ए मेडिसिन कि आप मेडिसिन ले रहे हो, एक टैबलेट ले रहे हो। तो यही है कि टैबलेट डायरेक्ट अंदर चली जाती है विदाउट एनी टेस्ट, इसको आपको थोड़ा सा टेस्ट लेके कंज्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो ये अवेलेबल है, हमें ढूंढना है और अपना सोल्यूशन खुद ही निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन, हम क्रश करके ले सकते हैं क्या कि उसके न्यूट्रिएंट्स? एग्जैक्टली आप क्रश करके भी ले सकते हो, उसको जूस फॉर्म खिलाने में क्या है तो आसानी रहती है कि नहीं, क्रश करके जूस निकाल के भी आपको नहीं टेस्ट उसका पसंद है तो मिक्सी में घुमाइए ना, जूस निकालिए उसका, उसमें और कुछ टेस्ट फूड फ्रूट्स या कुछ और ऐड कर दीजिए, ऐड ऑन करिए उसमें कुछ, तो आपका टेस्ट भी आ जाएगा, जूस फॉर्म में आप कंज्यूम भी कर पाओगे अच्छे से, है ना। सन ड्राई करके पाउडर फॉर्म कर सकते, सन ड्राई कर सकते हैं। हाँ, सन ड्राइड एक्चुअली क्या होता है कि कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सनलाइट में वो निकल जाते हैं, तो आप एक थोड़ा सा लाइट सनलाइट या फिर थोड़ा सा सनलाइट एकदम डायरेक्टली नहीं आए ऐसी जगह पे आप रखोगे ना, कपड़े पे, कॉटन में, तो वाटर सूख कर लेगा तो भी वो अच्छी तरह से सूख जाएंगे। हाँ, ड्राई करके ही कर सकते हैं, और किसका टाइम नहीं है आपके पास ये सब करने के लिए कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए 2-4 पत्ते तोड़ के लाइए, घर में धोआ के मुंह में डाल दीजिए ना, क्या चिंता है, टाइम भी बच जाएगा और खर्चा भी बच जाएगा। ओके, थैंक यू।